दोस्तों रणबीर कपूर सच में एनिमल बन गए हैं। राजा मौली के साथ काम करने से उन्होंने मना कर दिया है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूयॉर्क स्पार्क में, जहां बातें होगी टाइट और कंटेंट होगा राइट। रणबीर कपूर ने एक प्रमोशनल इवेंट में सबको हिला डाला। जब उन्हें राजा मौली ने खुद पूछा कि कौन से डायरेक्टर के साथ काम करना चाहोगे, तो उन्होंने कहा संदीप रेड्डी वांगा। I love Sandeep Reddy Vanga, sir. You love him very much. Very much. He's the best director for you in the world right now. Yes. So, if you have to choose only one film that you have to act, will you select Sandeep Reddy Vanga or me? Sir, sometimes we can also do double shifts. Go to one set I and said two only one chance. Only one chance. You have only one chance. So, would you select a film I with have me to- or Sandeep Reddy Vanga? I'm Don't going- lie. I'm going to be a loyal actor and I will have to choose Sandeep Reddy Vanga right now, sir. Fantastic. रणबीर ने ये सोचा होगा कि संदीप के साथ काम करने का क्या है, कम से कम वो मुझे राजा मौली की तरह जंगल में 5 घंटे तक तो नहीं भगाएगा। भागने से याद आया कि रकुल प्रीत दोबारा भाग नहीं पाएगी। दोस्तों आजकल सब जिम का चक्कर लगा लगा के अपना बड़ा कर रहे हैं, खास करके बॉलीवुड के स्टार्स। बस उनमें से एक है रकुल प्रीत, जिनसे ये ना हो पाया। मतलब बड़े तो बॉडी तो बनी है, लेकिन एक डेडलिफ्ट ने इनकी जान ले ली। Hi, my lovely people. Well, here's a little health update. I did something very, very stupid. I didn't listen to my body. I had a spasm, kept pushing it, turned into a major injury, and I've been on bed for the last 6 days. And I think it'll take another week or so for me to fully recover. I really hope I recover faster than that, because it's not easy for me to give in and rest. But it's a lesson learned that please listen to your body when it gives you signals. Don't try to push. I thought that my mind was stronger than my body, and it doesn't always work like that. So thank you so much for all your wishes, for people who messaged me, and I will bounce back stronger. Lots of love. तो देखा अपने बॉडी के विल के खिलाफ जाकर कैसे रकुल ने 80 केजी का डेडलिफ्ट करने की कोशिश की और अब गंभीर स्थिति में है। तो आप भी प्लीज कुछ बड़ा करने के लिए छोटे से शुरू करना। वैसे छोटा तो सिद्धार्थ कपूर का निकला। दिल। इंसान कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन उन्हें बड़ा करने वाला हमेशा फैन होता है। और यहाँ पर इस चिल्लर के लिए उसके फैन ने कितने प्यार से पेंटिंग बनाई थी, लेकिन सिद्धार्थ कपूर के लिए वो चिल्लर लग रहा था। हाँ, इधर से मेरा तो यही कहना है दोस्तों, आप कहीं पे भी जाओ, सेलिब्रिटी दिखे तो उन्हें देखो, लेकिन कुछ ले जाने से अच्छा है किसी गरीब को चिल्लर दे आओ। कम से कम उसकी दुआ तो मिलेगी, जो इन स्टार्स के एटीट्यूड से तो बहुत अच्छा है। वैसे एटीट्यूड तो अल्लू अर्जुन जैसा होना चाहिए, चाहे कितना भी बड़े हो जाए, वो हमेशा डाउन टू अर्थ ही रहे हैं। हाल ही में पुष्पा 2 के इवेंट में एक फैन ने अल्लू के साथ सेल्फी खिंचवाने के लिए सारे सिक्योरिटी तोड़ दिए और स्टेज तक पहुंच गया। ఈ ఫంక్షన్ ని ఇంత బాగా I love my fans. I love my fans. కానీ దయచేసి అలా చేయకండి. अल्लू अर्जुन ने इवेंट के बाद उस फैन से बात भी की और उसे सिक्योरिटी से बचाकर जाने भी दिया। अगर आप ऐसे स्टार्स के लिए कुछ लेकर जाओगे तो बात सही है, बस चिल्लर लोगों को ज्यादा भाव नहीं देने का। वैसे अल्लू अर्जुन ने ये भी बताया कि फिल्म शूट खत्म होने के बाद वो कितने इमोशनल हो गए थे। My daughter doesn't even come to me because I can't even kiss her because I have beard on. I haven't kissed her properly in the last 3-4 years, and I've been waiting to get my beard off and start, and finish with this film. But actually, I think Rashmika finished one day before me, and she was tearing, and I was like joking. I was like, "What? Why are you crying? Why are you tearing up?" She's like, "No, sir. In 7 years of my career, almost 5 years, I've shot for this film. It's like home." I said, "Yeah, we will miss you too," and all that. I was like, "Come on, life goes on." Yeah, whoa. I said all that, and next day, when I finished my shot, I went quiet. It got very heavy for me. It genuinely got very heavy for me. I just went quiet because all the faces that you see, it's the last 5 years I've been seeing the same people, same faces, and
only 3 times I got that feeling that I want this film to become a big hit. दोस्तों पुष्पा 2 की एडवांस बुकिंग 100 करोड़ क्रॉस हो गई है और फिल्म 5 दिसंबर को रिलीज होने वाली है। रिलीज होने से पहले ही पुष्पा के साउंड डिजाइनर ने पुष्पा 3 के बारे में खुलासा किया है। रसूल पूकुट्टी ने सोशल मीडिया पर ये फोटो शेयर किया जिसमें आप देख सकते हैं पीछे पुष्पा 3 द रैम्पेज लिखा है। इसका मतलब रैम्पेज होने वाला है क्योंकि इस फिल्म में विजय देवरकुंडा विलन का काम करने वाले हैं। वैसे इस फोटो को उन्होंने कुछ समय बाद डिलीट कर दिया, शायद उनके चश्मे का नंबर बढ़ गया है। पुष्पा 2 समझकर उन्होंने पुष्पा 3 रैम्पेज का फोटो शेयर कर दिया। वैसे शेयर तो विक्रांत मासा ने भी किया था कि वो इंडस्ट्री छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन अभी उन्होंने बात पलट दी है क्योंकि यार इन स्टार्स लोगों को न्यूज में आने के लिए उटक पटक हरकतें तो करनी पड़ती है, नहीं तो कुत्ता भी सोचेगा ये कौन है। हो सकता है भाई का कुछ मैटर होगा अपने घर में या फिर तंग आ गया होगा इसलिए ब्रेक ले रहा होगा ताकि घर पर आराम से ब्रेकफास्ट कर सके। वैसे साइलेंस ब्रेक तो अमिताभ बच्चन ने किया है। सारे लोग ऐश्वर्या और अभिषेक बच्चन के डाइवोर्स के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि हाल ही में एक इंटरनेशनल इवेंट में ऐश्वर्या राय ने अपने नाम से बच्चन निकाल दिया, जिस पर सारे लोग शॉक हुए। This gathering is more than just an event. It is a legacy of empowerment. It is an honor, an absolute privilege to be here at the Global Women's Forum in Dubai 2024, a platform that since its inception has consistently championed the empowerment of women across all spheres of life. This summit is a shining example of what can be achieved when voices from diverse backgrounds come together with a shared purpose to inspire change, foster equality, and create opportunities for women worldwide. दोस्तों ना आम मिला ना अंगूर, मिला था जो नूर वो उसे भी खोकर हो गई चूर। वैसे दोस्तों मैंने गलती से लंगूर के जगह नूर बोल दिया। ओह, मेरे से छोटी छोटी गलतियां होती रहती है, लेकिन अगर आप लाइक और सब्सक्राइब करोगे तो शायद मैं जल्दी सुधर जाऊंगा और आपको बिगाड़ूंगा। बिगड़ तो नेजी गया है। नेजी की जिंदगी तो पहले से ही बिगड़ी हुई थी। भले ही उन्होंने थोड़ा बहुत फेम कमाया लेकिन उसे गंवाने में ज्यादा समय नहीं लगा और वैसा ही एक किस्सा उन्होंने वापस किया नशे में धूत होकर। पीछे क्या पीछे अरे आप पीछे आगे पीछे क्या कर रहे हैं? एक जगह बोलना खड़े रहने के लिए। चलेगा चलो चले रे क्या वट ने तो बोला बेटे, वट ने तो बोला बेटे, वट ने तो खाएगा तू फटके, वट ने तो हो। आप वीडियो देखकर आ गए क्या? मैं तो बस ये नेजी का सॉन्ग सुन रहा था जिसे सुनकर मुझे उसी को फटके देने का मन कर रहा है। आप भी सुन लेना, गाने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। लेकिन आपको फटके मेरे सब्सक्राइब के बटन पर मारना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और की फाड़ने के लिए। बाय बाय।